So before we go ahead to the next topic, we will very quickly revise what we have learned in the last session. It will be a very quick revision. तो जो कल नहीं थे, for some reason if you could not come, ध्यान होना चाहिए क्योंकि अगला टॉपिक इसके बिना समझेगा नहीं. तो we started off with a new topic in the last session, that was magnetic properties of materials. Magnetic properties of materials. तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, वी क्लासीफाई देम बेस्ड ऑन हाउ दे बिहेव अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. तो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ दे बिहेव अंडर द external field, we classified these materials into three types. So remember, the behavior of materials in external magnetic field. The behavior of material. It is important to understand that the behavior, how does they behave under the action of external field. Based on that, we classify magnetic materials into three types. So the behavior of materials in an external magnetic field, in an external magnetic field, classifies the material into three types. तो मैग्नेटिक मटेरियल के तीन टाइप्स है. कौन सा तीन टाइप है? पहला है डायामैग्नेटिज्म. जो हमने लास्ट लेक्चर में इन डिटेल देखा है, आज वापस रिवाइज हो जाएगा. नंबर 2 इज पैरामैग्नेटिज्म एंड नंबर 3 इज फेरोमैग्नेटिज्म. गुड. So how does a material behave under external magnetic field? It will decide material डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक. और हम लोग और एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं मटेरियल को क्लासीफाई करने के लिए, विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको तुम काय से डिनोट करते हो, इट इज स्मॉल एंड नेगेटिव. तो -10⁻³ से -10⁻⁵ तक होता है. So it is from -0.001 to -0.00001. पैरामैग्नेटिक के केस में जो ससेप्टिबिलिटी होता है काय, इसका वैल्यू स्मॉल बट पॉजिटिव होता है. तो 0 to 10⁻³ तक होता है. तो इट इज फ्रॉम 0 to 0.001. और फेरोमैग्नेटिज्म के लिए जो काय का वैल्यू होता है, इट इज पॉजिटिव एंड लार्ज. इट वेरीज फ्रॉम 10⁻² to 10⁻³ 100 से 1000 के बीच में आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी. तो यू क्लासीफाई magnetic materials into three types based on two parameters. Number 1 is the behavior of the material inside the magnetic field. Number 2 is the value of susceptibility. Good. तो एक एक करके हमको आज तीनों ही materials cover करने हैं. तो we want to first understand what is a diamagnetic substance. We want to see what are the properties of diamagnetic substance. Then we will go through what is paramagnetic substance, what are the properties of paramagnetic substance. Then there is a law which is related only to paramagnetic substances. एग्जाम में गलती हो जाती है. वो लॉ, क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, वो सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है, ना वो फेरो के लिए है, ना वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है. फिर हम लोग देखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी. वो डोमेन थ्योरी भी आज ही कवर करना है हमको. Good. And lastly, we will see what is the effect of temperature on ferromagnetic substances. तो आज का हमारा टास्क है diamagnetic substances, paramagnetic substances, Curie's law of paramagnetism, ferromagnetic substances, domain theory which explains ferromagnetism, and sixth but last topic for today, आज का आखिरी टॉपिक रहेगा effect of temperature on ferromagnetic substances. So we will try to cover all this. तो सबसे पहले we will start with diamagnetism. As I told you, हमने कल कवर किया है. ये सिर्फ एक रिवीजन है. पैरामैग्नेटिज्म से कंपेयर करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए. तो diamagnetic substances are substances which are weakly repelled by magnet.
So these substances are weakly repelled by a magnet या फिर by external magnetic field. These substances are made up of atoms which have even number of electrons. तो ये याद रखना, these substances are made up of atoms which have even number of electrons, और जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यू मस्ट नो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, क्योंकि पेयरिंग के लिए यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन्स और इवन नंबर है तो दे आर पेयर्ड. सो इन दिस केस all the electrons are paired. That is there is no unpaired electron. अगर unpaired electron नहीं है तो net dipole moment भी नहीं है, क्योंकि as you know magnetic dipole moment of a substance comes from atom, और एटम को कहाँ से मिलता है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से. और अगर आपको याद होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को दो सोर्सेस से मिलता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट. एक है ऑर्बिटल मोशन और एक था इंट्रिंसिक स्पिन. याद है ना, हमने डिराइव किया था, हमने ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस डिराइव किया है, एम ऑर्बिटल. 3-4 फॉर्मूला थे. EVR/2 था, उसके बाद EL/2m था, उसके बाद ENH/4πm था. हमने ये सब लास्ट 2 लेक्चर में कवर किया, तो आई विल नॉट रिवाइज दिस, बट यू हैव टू नो दिस. इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, उसमें जो डाइपोल मोमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसके 2 सोर्सेस है. एक सोर्स है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, उसका फॉर्मूला है EVR/2, या फिर अगर आप m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हो तो वो बन जाता है EL/2m, और L के जगह पे अगर NH/2π लिखोगे, बोहर सेकेंड पोस्टुलेट, तो वही फॉर्मूला बन जाता है ENH/4πm. ये जो वैल्यू है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की थ्योरेटिकल वैल्यू है. हम जब प्रैक्टिकली मेजर करने जाते हैं तो हमको हमेशा जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा मिलती है. वी डू नॉट गेट द सेम वैल्यू. तो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन से जो वैल्यूज हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे थे वो हो नहीं रहा. इसका मतलब देयर इज सम पार्ट मिसिंग, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट में और भी कहीं से कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा. तो शुरू में ऐसा उन्होंने इमेजिन किया, अज्यूम किया कि जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व भी होता है और खुद के एक्सिस के अराउंड स्पिन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी वैसा कर रहा होगा. इट इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. तो जो डाइपोल मोमेंट का और एक कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आ रहा होगा? स्पिन से. उसको बोल दिया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. बट बाद में ऐसा समझा कि वैसा कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्पिन. वो आपके सिलेबस के बाहर की बातें हैं, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्पिन. लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मोमेंट का वो तो फिर भी आ ही रहा है, तो उसको बोल दिया ड्यू टू इंट्रिंसिक स्पिन. मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रॉन है तो वो है. गुड. तो रिमेंबर, जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका पेयरिंग नहीं हुआ. अब ये पेयरिंग का कनेक्शन क्या है? वो जो तुम स्पिन मोमेंट की बात कर रहे थे, स्पिन मोमेंट के 2 ही वैल्यू होती है, +12 और -12. कहाँ से आता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इट टेल्स यू दैट no 2 electrons can have the same set of all the 4 quantum numbers. n, l, ml और ms, ये चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकती. n सेम हो सकता है, l सेम हो सकता है, ml भी सेम हो सकता है, ms कैनॉट बी सेम. तो एक इलेक्ट्रॉन का ms पॉजिटिव हाफ है तो एक का नेगेटिव हाफ है.
और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो प्लस हाफ माइनस हाफ विल कैंसल आउट। पक्का? तो डायमेटिक सब्सटेंस में तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या होता है कि डायपोल मोमेंट क्या हो गया, कैंसल। क्या हो गया, कैंसल। तो जब एटम के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं है तो उस एटम से जो तुम सब्सटेंस बनाओगे उसके पास होगा क्या, नो। So remember, in this case, all the electrons are paired. There is no unpaired electron, which means atom has zero net dipole moment. तो एटम का ही डायपोल मोमेंट जीरो है, देयरफॉर सब्सटेंस का भी जीरो है। तो देयरफॉर सब्सटेंस का भी नेट डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। लेकिन जब आप ऐसे एटम्स को, मतलब ऐसे सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, तो व्हेन यू कीप सच एटम्स इन एक्सटर्नल फील्ड, पहले तो ये एटम का न्यूक्लियस है, एंड देन यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, यू हैव अ इलेक्ट्रॉन, यू हैव अ इलेक्ट्रॉन। हम दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं क्योंकि हमने अभी बोल दिया कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। एक का ms का डायरेक्शन ऊपर होगा, एक का नीचे होगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक का ऊपर है, एक का नीचे है। यू कैन जस्ट राइट डाउन m इफ यू वांट, सिर्फ m लिखा तो नहीं चलता है। गुड। व्हेन यू कीप such substances in an external uniform magnetic field, तो उस केस में जिस इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रॉन विल स्लो डाउन। और जो दूसरा है जिसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट है, बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन इट स्पीड्स अप। तो when such atoms are placed in external magnetic fields, the electron whose moment is in the direction of field, slows down, and the electron whose moment is opposite speeds up। और हमको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने आज वो बताया भी फॉर्मूला, मोमेंट डिपेंड्स ऑन स्पीड, EVR/2। तो जिसका स्पीड बढ़ गया उसका मोमेंट भी बढ़ गया, और जिसका स्पीड कम हो गया उसका मोमेंट भी कम हो गया। इसका मतलब जिस एटम के पास पहले डायपोल मोमेंट था ही नहीं, जीरो था क्योंकि कैंसलेशन था, अब उसी एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट है इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, राइट। देयरफॉर द एटम नाउ possess, देयरफॉर ये स्पीड अप स्पीड डाउन की वजह से क्या हुआ, एटम के पास एक डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट आ गया। देयरफॉर द एटम now possess net dipole moment opposite to that of external field, right? Good। तो अभी ये मैग्नेटाइज स्टेट हो गया इसका। As I told you, I am just revising, so I will not really write down everything. So now the atom behaves like a tiny magnet, लेकिन यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में है। This is all what you need to know. The substance is now in its magnetized state. Then we have seen some properties of diamagnetic substances. तो बस बेसिक चीजें याद रखो।
बेसिक चीज इतना ही है, वीकली रिपेल रिपेल क्यों होता है वो देखेंगे अभी हम लोग, वैसे तो समझ में आ ही गया तुमको। जो नेट डायपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा, सिंपल सी बात है, इट विल बी वीकली रिपेल्ड। Diametric substances are made up of atoms which have even number of electrons. So all the electrons are paired. There is no unpaired electron. Since there is no unpaired electron, net dipole moment with atom is zero. But when you keep such material in an external field, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स का डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है वो स्लो डाउन होता है, और जिसका डायपोल मोमेंट अपोजिट होता है टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो स्पीड अप होता है। इसका मतलब अब नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, और यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट है। गुड, इतना पता है तो नाउ यू हैव टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यू रिमेंबर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? If a rod of a diamagnetic material is freely suspended in a uniform magnetic field, it comes to rest with its length perpendicular. So if a rod of diamagnetic substance is freely suspended in external uniform magnetic field, it comes to rest with its length perpendicular to the field. ये नंबर 1 था। नंबर 2, if a diamagnetic substance is kept in a non-uniform magnetic field, non-uniform field में field की वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं होती, तो उस केस में दिस सब्सटेंस विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट, क्योंकि ये रिपेल होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन में जाएगा। सो when such a substance is placed in a non-uniform magnetic field, it moves from stronger region to weaker region of the field. Then number 3, अगर एक्सटर्नल फील्ड हटा दी तो क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल कम जीरो। तो देखो थर्ड नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, ऐसे कुछ होगा। यू हैव टू रिमेंबर, आई रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। क्या बोला है? एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, मुझे आपका बोर्ड्स भी क्लियर करवाना है, तो यू हैव टू रिमेंबर, if the external field is removed, the net dipole moment of the substance becomes zero. So if the external field is removed, the net dipole moment of the substance becomes zero. इसका मतलब ये हो गया, thus what does that mean? क्या हुआ? डायपोल मोमेंट जीरो हो गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? If dipole moment becomes zero, then फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोला है? फोर्थ नंबर पॉइंट, the substance loses its magnetism. Thus, the substance loses its magnetism in absence of external field. Thus, the substance loses its magnetism in absence of external field.
in absence of external field. Good. मतलब बेसिकली सच सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स. तो तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट डालने डाल सकते हो. आई विल नॉट राइट डाउन हियर बट यू हैव टू नो बिकॉज दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लूजेस देयर मैग्नेटिज्म व्हेन यू रिमूव द एक्सटर्नल फील्ड. इसका मतलब दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स. नंबर 5 तुमने पहले बोला पहले पॉइंट में कि अगर हमारे पास एक डायमेटिक सब्सटेंस का रॉड होगा उसको अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ तो क्या होता है. It comes to rest with its length perpendicular. Now if I have let us say liquid diametric substance in the form of liquid, उसको अगर मैंने U शेप ट्यूब में भर दिया. इनिशियली तो U शेप ट्यूब में तुम कोई भी लिक्विड भरोगे तो इनिशियली दोनों कॉलम में हाइट सेम रहेगा बिकॉज प्रेशर इज सेम बोथ साइड एटमॉस्फेरिक. बट व्हेन यू अप्लाई फील्ड ओनली एट द वन आर्म because of the interaction of the diametric substance with the magnetic field, the level is lowered. So when a diametric liquid, when a diametric substance in the form of liquid, मतलब diametric liquid is filled in a U-shaped tube with one arm in external field, then what? Then the level of liquid in that arm is lowered, falls down, lowered. और अगर हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ गैस मैग्नेट के पोल पीसेस के बीच में रख दिया तो द गैस विल स्प्रेड एट राइट एंगल्स. गुड. सो a diamagnetic gas spreads at right angles to the magnetic field when kept between the pole pieces of electromagnet. Then you can write down something about susceptibility. Susceptibility is small and negative और मैंने तो बता ही दिया तुमको. It is basically from 10 raised to -3 to 10 raised to -5. Then last point, examples. Air, nitrogen, gold, silver. Examples: air, nitrogen, gold, silver, water, etc. तो इतना हमने कल कवर किया था. आई हैड टू रिवाइज दिस बिकॉज अगला टॉपिक इससे वेल कनेक्टेड है. तो इस चैप्टर का स्टडी करते वक्त तुमको सिर्फ डायमैग्नेटिज्म ही पढ़ना है, बाकी का अपने आप आ जाएगा तुमको बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द सिमिलर लाइन्स. जैसे तुमने डायमैग्नेटिज्म में लिखा, पहला ही तुमने डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करते वक्त द फर्स्ट पॉइंट दैट यू सेड वाज दिस सब्सटेंसेस आर वीकली क्या लिखा था, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट. वहाँ पे वीकली अट्रैक्टेड होता है, बस इतना ही है. तो पैरामैग्नेटिज्म में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. तो these substances are weakly, strongly नहीं, weakly attracted by a magnet, मतलब by external magnetic field भी बोल सकते हो. Then these substances, diamagnetic substances, were made up of atoms which have even number of electrons. Paramagnetic substances are made up of atoms. These substances are made up of atoms which have odd number of electrons.
which have odd number of electrons. अब ये important point इसके लिए भी है because it helps you to remember the examples of paramagnetic substances, क्योंकि तुमको periodic table पता है and you know which are atoms with odd number of electrons. For example बता रहा हूँ मैं, do not take it otherwise, it is just an example. For example, if I take some atom with let us say 11 electrons, वैसे कौन होता है वो? सोडियम। तो पहले 10 का तो पेयरिंग हो गया, पहले 10 का पेयरिंग हो गया ना, पहले 10 के 5 पेयर बन गए, एक लास्ट वाला बच गया अनपेयर्ड। अब क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि इस केस में एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ, मतलब वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, वो एटम को भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे देता है, मतलब एटम्स आर कॉल्ड एज टाइनी मैग्नेट्स इन दिस केस। रिमेंबर दिस सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स which have odd number of electrons, therefore there is at least one unpaired electron, one unpaired electron. Therefore the atom has net dipole moment, and each atom of paramagnetic substance behaves like a tiny magnet, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बल्क मटेरियल बनेगा, डायामैग्नेट में तो एटम के पास ही मोमेंट नहीं था, तो जब बल्क मटेरियल बना तो सब्सटेंस के पास भी नेट मोमेंट नहीं है, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हर एक एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब सब्सटेंस बल्क मटेरियल बनेगा तो उसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन होता नहीं है। अब वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब बल्क सब्सटेंस बनाते हो तुम, when you have bulk substance, तो बल्क सब्सटेंस में जितने भी एटम्स हैं, ये मैं एटम्स का डायपोल मोमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, जितने भी एटम्स का डायपोल मोमेंट है इट इज रैंडमली ओरिएंटेड, एंड यू मस्ट नो रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, 0। तो फॉर अ बल्क सब्सटेंस हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि इट शुड हैव नेट डायपोल मोमेंट, लेकिन नहीं होता है। तो व्हेन अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, व्हेन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस is formed, large number of these tiny magnets come together, but the dipole moments of these atoms are randomly oriented. Because of random orientation, therefore net dipole moment is 0. पक्का? गुड। I have to teach you theory। तो फेरोमैग्नेटिज्म तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। अब होता ऐसा है कि जब तुम ये रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल मोमेंट्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप का है, एक है वीक मैग्नेटिक फील्ड, एक है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का डिफरेंस चालू हो जाएगा। गुड। तो when we keep this paramagnetic substance in weak magnetic field,
तो दो टाइप के फील्ड में तुम रख सकते हो, वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड। सो तो पहला पहला केस है वीक मैग्नेटिक फील्ड का, वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन वी कीप दिस सब्सटेंस in weak external magnetic field, what is the direction of field? North to south. तो रिमेंबर ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, दिस इज वीक फील्ड। तो होता ऐसा है, ओनली अ फ्यू डाइपोल अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये जो डाइपोल्स है ना, दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद द एक्सटर्नल फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ओनली अ फ्यू, इसमें से कुछ खुद को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। So they will align themselves in the direction of field. Only a few, not all. That is important. Only a few, not all of them. So when paramagnetic substance is kept in a weak external magnetic field, only a few dipole moments align themselves in the direction of field. और वापस से एक बार याद कर लो, हमने कल के लेक्चर में मैग्नेटाइजेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट सीखा था। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में कितना नेट डाइपोल मोमेंट है। जब तक तुम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखे ही नहीं, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? ज़ीरो, बराबर। तो नेट डाइपोल मोमेंट अगर ज़ीरो है तो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? ज़ीरो। अगर मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो है तो मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होता है, बराबर। बट व्हेन यू कीप इट इन अ वीक फील्ड, अब वीक फील्ड में रखने से क्या हुआ? बिकॉज यू केप्ट इन अ वीक फील्ड, ओनली अ फ्यू डाइपोल्स, दोज हु कुड इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल फील्ड, दे अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब अभी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इसका मतलब सब्सटेंस इज इन मैग्नेटाइज्ड स्टेट, यस, बट इट इज वीकली मैग्नेटाइज्ड। तो याद रखना ये। सो रिमेंबर, only a few dipole moments align themselves in the direction of field. अब जब तुम इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, when you keep such substance in strong magnetic field, अभी this is also important, you have to see these dipoles are aligning themselves in the direction of field। मतलब net dipole moment is in the direction of field, unlike डायमैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट था, इसलिए वो वीकली रिपेल्ड था, ये वीकली अट्रैक्ट होगा। गुड। सो इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, जब तुम इसको एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखोगे, तो सारे के सारे ही खुद को अलाइन कर लेंगे। ऑल ऑफ देम अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सब्सटेंस इज सेड टू बी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। The substance is said to be strongly magnetized in that case. तो ऐसा हो जाएगा वो। All are pointing in the direction of external field, right? So in strong magnetic field, all the dipole moments, all the tiny magnets, all the dipole moments align themselves in the direction of field, और ये ना थ्योरी इंपॉर्टेंट इसके लिए, मे बी समवन ऑफ यू वांट टू बिकम अ मटेरियल साइंटिस्ट इन फ्यूचर।
मटेरियल साइंस इज, इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और एमएससी के मास्टर्स के डिग्री में बहुत सारे लोग मटेरियल साइंस ही पढ़ते हैं, तो तब लगेगा, क्योंकि यू सी दिस इज अ मटेरियल जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यू कैन कंट्रोल. इफ यू वांट the material to show strong magnetization, so you have to keep it in external magnetic field, right? If you want the metal not to show any magnetic property, you remove the field. Or if you want the metal to be attracted by external field, you use which substance? Paramagnetic. And if you want to be weakly repelled, you use diamagnetic substance. Good. यहाँ तक तो हो गया. और अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया, इफ आई रिमूव द फील्ड, द सब्सटेंस बिकम्स नॉन मैग्नेटाइज, मतलब इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म. वो हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे. तो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड पैरामैग्नेटिज्म. अब प्रॉपर्टीज, इसके भी प्रॉपर्टीज हम सिमिलर लाइन पे ही स्टडी करने वाले हैं. इसके लिए ही मैंने बोला आपको, डायमैग्नेटिज्म जैसे है वैसे के वैसे एज इट इज फ्लो रखो. इफ यू फिक्स द फ्लो, तुमको 3 टॉपिक पढ़ने नहीं पड़ेंगे, ओनली 1 टॉपिक and then just similar. What was the first property here? If you remember, if a rod of diamagnetic substance is freely suspended in diamagnetic substance, हाँ वो अभी पैरामैग्नेटिक की बात हो रही है, लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के रॉड को तुमने जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया तो क्या हुआ? सस्पेंड किया तो क्या हुआ? इट कम्स टू रेस्ट विद इट्स लेंथ परपेंडिकुलर. यहाँ पे पता है क्या होता है? पैरेलल. यहाँ पे क्या होता है? पैरेलल. गुड. सो if a rod of paramagnetic substance, if a rod of paramagnetic substance, of paramagnetic substance is freely suspended, is freely suspended in external uniform magnetic field, in external uniform magnetic field, it comes to rest, it comes to rest with its length parallel, with its length parallel to the field. And remember, ये सेम प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी है. सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है फेरोमैग्नेटिक में और पैरामैग्नेटिक में. इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस. प्रॉपर्टी नंबर 2, what did you write down there in property number 2? The same goes here also. What did you write? When a substance is placed in a non-uniform magnetic field, it moves from, यहाँ पे it moves from stronger to weaker because it was weakly repelled, right? Paramagnetic क्या होगा? It will move from weaker to stronger because it is weakly attracted. So when such a substance is placed in non-uniform magnetic field, it moves from weaker region to stronger region of the field. To stronger region of the field. What was the next point that you wrote? In absence of external magnetic field, net dipole moment is 0. यहाँ पे भी वही है. फिर यहाँ पे कुछ नया नहीं है. It is the same thing. The same thing. If external field is removed, the net dipole moment of the substance becomes 0. Good. Good. Same point. Same. Exactly same. तो दोनों में ये पॉइंट एकदम सेम है. Same. Good. So if the external field is removed, then the net dipole moment of the substance becomes 0. तो एक दो लेटर्स, एक दो वर्ड्स अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो समझ लेना. जैसे यहाँ पे मैंने फील्ड और 0 लिखना भूल गया था. एनीवेज, गुड. Does what? The substance loses its magnetism in absence of external field. उधर भी वैसा ही है. Thus the substance loses its magnetism
thus the substance loses its magnetism in absence of external field. उसके बाद मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी बताया था, दिस सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स, तो ये भी नहीं हो सकता। देन उसके बाद अगर मेरे पास एक लिक्विड फॉर्म में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था, उसको अगर मैंने यू शेप के ट्यूब में भर दिया और एक ही आर्म में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो लेवल क्या हो गया था, लोअर। वहाँ पे उल्टा होगा, लेवल विल बी हायर, मतलब रेज हो जाएगा वो। गुड। तो व्हेन और डायमैग्नेटिक की जगह पे पैरामैग्नेटिक लिक्विड, लोअर की जगह पे हायर, लेवल इंक्रीजेस। गुड। ओके, exactly same. If a paramagnetic liquid is filled in U-shaped tube with one arm in external field, then the level of the liquid in that arm increases. Okay, good. और उसका रीजन है, अभी वो रीजन मैंने नहीं बताया, बट आई विल जस्ट टेल यू नाउ व्हाट इज द रीजन। यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। देखो फॉर एग्जांपल इमेजिन आई हैव अ ट्यूब, ये उसका एक आर्म है, इसमें डायमैग्नेटिक लिक्विड है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया पैरेलल, बराबर, एक्सटर्नल फील्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा वो एक्सटर्नल फील्ड को क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब नीचे होगा। नीचे होगा ना, तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स भी होता है। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, जैसे लेवल क्या हुआ था, लोअर। पैरामैग्नेटिक में अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाता हूँ, एक ही आर्म पे लगा रहा हूँ, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर मैंने फील्ड ही ऊपर के डायरेक्शन में लगा दिया तो इस केस में डाइपोल मोमेंट भी कहाँ है, ऊपर है, तो लिक्विड का लेवल क्या होगा, हायर होगा। तो उसका रीजन था, वो रीजन यू आर नॉट सपोज टू राइट डाउन, बट यू आर सपोज टू जस्ट नो फॉर योरसेल्फ। देन उसके बाद विच पॉइंट डिड यू राइट डाउन, उसके बाद क्या लिखा तुमने। अगर मेरे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, हाउ डज इट स्प्रेड, at right angles to the magnetic field when kept between the pole pieces, right? Very good. अगर मेरे पास paramagnetic substance है in the form of gas, if I have a paramagnetic substance in the form of gas, it spreads along the magnetic field, मतलब it spreads parallel, along होता है यहाँ पे, यहाँ पे along होता है, do not forget, in this case it is along the field. So in this case a paramagnetic substance, a paramagnetic gas spreads at right angles, no, spreads along the field, या फिर पैरेलल टू द फील्ड बोल सकते हो, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन केप्ट बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। लास्ट नहीं, और एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे, ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, 0 से 10⁻³ और भी है यहाँ पे। इन दिस केस यू हैव टू नो, of course examples will be there, examples तो रहने वाले। what are the examples, you can just read it for yourself from the notes। एल्यूमिनियम है क्या, yes, और क्या है, हाँ, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। बस आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हेड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। इसके बाद अभी तुमको थोड़ा केमिस्ट्री या फिर तुमको पीरियोडिक टेबल पता होगा तो समझ में आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, वो है ससेप्टिबिलिटी का। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। दिया है क्या, देखो वहाँ पे दिया है,
ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो सिर्फ पैरामैग्नेटिक के लिए होता है, वो बाकी किसी के लिए नहीं होता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है वो देखेंगे हम लोग, बराबर। तो इतना पता है, तो नाउ यू आर रेडी टू गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। इट इज टू सिंपल। अब एक बात बताओ, कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज कब होता है? जब जब उसके पास नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नॉन जीरो हो। यूनिट वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो वो क्या होगा? मैग्नेटाइज, मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होना चाहिए, बराबर। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता कब है? जब उसको आप किस में रखते हो? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैं अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाऊंगा तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा, बराबर, करेक्ट, सही है ना? तो रिमेंबर पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, पैरामैग्नेटिक सैंपल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन इनवर्स है। क्यों है? वापस सोचो, ये दैट इज वाई केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एंट्रोपी? randomness of the system, right? What is the relation of entropy with temperature? Directly inverse, क्योंकि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, चलो छोड़ो एंट्रोपी की साइड में रखो, मैं तुमको इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट समझा देता हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट हियर। देखो ऐसा है, जब तुमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा ही नहीं तो मैग्नेटाइज है क्या? नहीं है, क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। अब तुमने इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में रख दिया, वेरी गुड। तो जितना फील्ड ज़्यादा होगा उतना ही अलाइनमेंट ज़्यादा होगा, जितना अलाइनमेंट ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा। इसलिए तुम बोल रहे हो कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड। नाउ इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। थर्मल एनर्जी बढ़ता है तो वो रैंडमली ओरिएंट करना चालू कर देता है वापस से। मतलब बेसिकली द रोल ऑफ टेम्परेचर इज टू weaken the interaction between the dipole moment and the external field. So if I keep on increasing temperature, randomness will increase, state of disorderliness will increase, entropy will increase, बराबर। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ अलाइनमेंट क्या होगा? अलाइनमेंट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अलाइनमेंट कम होगा तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? मतलब कम होगा। तो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन आएगा? इनवर्स। तो हो गया आपका क्यूरीज लॉ, डन, दैट्स ऑल। तो इट स्टेट्स दैट, तो एंट्रोपी टर्म में मत सोचो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऑफ कोर्स जब तुम बोलते हो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हर एक सब्सटेंस का नहीं होता है, इनवर्स भी हर एक सब्सटेंस का नहीं होता है, सब्सटेंस टू सब्सटेंस चेंज होता है। तो जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ अलाइनमेंट। इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटाइजेशन of a paramagnetic substance, is directly proportional to external magnetic field and inversely proportional to absolute temperature, to its absolute temperature. What is absolute temperature? Temperature measured in Kelvin, बराबर। ठीक है, फिलहाल तो मैं सिर्फ टेम्परेचर लिख देता हूँ, बाद में देखेंगे एब्सोल्यूट है कि नहीं, वो बाद में देख लेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, गुड। देन इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन mz इज प्रोपोर्शनल टू B एक्सटर्नल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, ये सम कांस्टेंट सी को बोलते हो क्यूरी कांस्टेंट, तो दिस सी इज कॉल्ड एज क्यूरी कांस्टेंट। ये बन गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर क्यूरीज लॉ, mz इक्वल्स टू सी बी एक्सटर्नल बाई टी, बराबर है ना, एक क्वेश्चन है ना दिया होगा, दिया क्या? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्यूरीज लॉ पैरामैग्नेटिज्म, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इट, व्हाट इज क्यूरीज लॉ, इसके बाहर कुछ नहीं आता। इस पे क्वेश्चन आते हैं, सीईटी जेईई नीट हर एग्जाम में आते हैं इस पे। गुड, देन ऑफ कोर्स जेईई में थोड़े कम आते हैं, नीट में आता है अच्छा खासा। उसके बाद वी वांट टू सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल, दैट इज फेरोमैग्नेटिक materials. Of ferromagnetic materials, they are quite similar to paramagnetic materials. तुमने paramagnetic materials में लिखा था these substances are weakly attracted by a magnet. Ferromagnetic substances are strongly attracted by a magnet. तो ferromagnetic substances are strongly attracted by a magnet. हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में देखा था कि व्हेन यू कीप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन वीक मैग्नेटिक फील्ड ओनली अ फ्यू डाइपोल्स वेर अलाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हुआ लेकिन कम हुआ। यहाँ पे even when you keep such substance in a weak magnetic field there is strong alignment, मतलब बहुत सारे डाइपोल, मैं 100% अलाइनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे, मेजोरिटी, मोस्ट ऑफ देम, मोर देन 50% गेट अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब ऐसा क्यों होता है वो हम डोमेन थ्री से समझेंगे, लेकिन फिलहाल तो पहले हमको पता होना चाहिए। सो दिस सब्सटेंसेस अचीव हाई डिग्री ऑफ अलाइनमेंट, these substances achieve high, मतलब the dipole moment of these substances, the dipole moment of these substances achieve high degree of alignment when kept in external field. बट और इसमें जैसे पैरामैग्नेटिक में जैसे तुमने एक्सटर्नल फील्ड रिमूव कर दिया तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो डायपोल मोमेंट्स थे उनका अलाइनमेंट वापस से रैंडम हो गया, सो दे लूज देयर मैग्नेटिज्म। यहाँ पे वैसा नहीं होता है, राइट? So even after removal of external field, there is some alignment. So therefore net dipole moment is not zero. Net dipole moment is not zero. मतलब in absence of external field also they remain magnetized. So hence this type of substances will be used to make permanent magnets. One of them is iron, क्योंकि iron is a permanent magnet. Iron shows magnetic properties. Good. Even if you keep it in external magnetic field or you don't keep it, वो magnetic ही है. We will study properties again one by one. So the properties also are quite similar to paramagnetic substances. बहुत सिमिलरिटी है इसमें। हाँ, सिर्फ एक चीज है, वो ऐसा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, मोस्टली। तो वो जो तुमने वो लिक्विड वाला और गैस वाला लिखा, वो उसको स्किप कर दो, हटा दो, राइट? तो हमने जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एक रॉड बनाया था और उसको फ्रीली सस्पेंड किया था किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इट कम्स टू रेस्ट विद इट्स लेंथ पैरेलल। यहाँ भी वही होने वाला है, इज द सेम प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली सेम।
तो एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी हो, है ना? गुड. देन व्हाट वाज सेकंड प्रॉपर्टी हियर? Second property, when such a substance is placed in non-uniformatic field, it moves from weaker part to stronger part. यहाँ पे वही होने वाला है. I think I have given less number of properties in note. Just let me cross verify क्योंकि जरूरत भी नहीं है. वैसे लिखा ही है. Second property is also same. It's the same. It moves from weaker part to stronger part of the magnetic field. Okay. So when such a substance is placed in a non-uniformatic field, it moves from weaker region to stronger region of the field. Then, then, then उसके बाद all the atoms of ferromagnetic materials have a resultant magnetic moment even in the absence of external field. तो एक्सटर्नल फील्ड रिमूव भी कर दोगे तो एटम, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ atoms which have odd number of electrons. तो इवन इफ यू रिमूव द फील्ड, हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है. सो all the atoms of ferromagnetic substance have non-zero dipole moment even if external field is removed. Then what else? वो तो पैरेलल वाला मैंने पहले ही बता दिया. स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड तो पता ही है तुमको. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिमेन्स मैग्नेटाइज्ड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फील्ड. वो तो सेम ही चीज़ हो गई. अगर एटम, ठीक है चलो सेम चीज़ नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि ऑल द एटम्स हैव डायपोल मोमेंट. अब अगर हर एक एटम का डायपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैसा होता है क्या? नहीं. सो these substances remain magnetized even after the removal of external field. So therefore such substances can be used to make permanent magnets. तो पांचवा पॉइंट तुम लिख लेना. Examples, always give some example. दिए क्या उसमें example? Iron and nickel. Okay. Iron, nickel, cobalt, etc. तो ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर ऐसा क्यों है? क्योंकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज, मोर और लेस दे आर द सेम. मैं बोल रहा हूँ कि हर एक आइटम के पास डायपोल मोमेंट है, तो पैरा में भी है, फेरो में भी है. लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जब तुम एक्सटर्नल फील्ड रिमूव कर देते हो, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म. ऑल द डायपोल मोमेंट्स दे बिकम रैंडमली ओरिएंटेड. यहाँ पे वैसा नहीं होता. तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? सो द बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी. वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये डोमेन थ्योरी सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे एप्लीकेबल है. तो डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म. कोई कंफ्यूजन का केस ही नहीं बनता. इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, इंटरेस्टिंग ऑल्सो. अब तुमको थ्योरी में इंटरेस्ट होना चाहिए. आजकल यू ऑल रन ओनली बिहाइंड सॉल्विंग क्वेश्चंस. इट इज गुड दो, बट थ्योरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो चलो ठीक है. एनीवेज, एज यू गो टू हायर लेवल्स यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी. अभी फिलहाल फॉर यू इम्पोर्टेंट इज टू स्कोर इन JEE NEET एग्जाम. ठीक है. एनीवेज, तो बेसिक डिफरेंस लाइज इन दिस केस. अभी यहाँ पर डोमेन थ्योरी क्यों बोला है?
सबसे पहले रिमेंबर, इन फेरोमैटिक सब्सटेंसेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बिटवीन द नेबरिंग डाइपोल मोमेंट्स, जिसका एक नाम भी है, लिखा है। क्या बोलते हैं उसको? समथिंग टू डू विथ कपलिंग। स्ट्रॉन्ग कपलिंग ऐसा कुछ लिखा होगा ना उसमें। अरे एक्सचेंज इंटरैक्शन बोलते हैं या तो एक्सचेंज कपलिंग भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग कपलिंग होता है वो। सो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड डोंट वरी, मैं तुमको ये रियल लाइफ के एग्जांपल समझाऊंगा। ऑफ कोर्स मेरे एग्जांपल थोड़े इरेलेवेंट होते हैं, मे बी समटाइम दे सर्व एज पुअर जोक्स, लेकिन याद रहेगा कम से कम। सो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देयर इज a strong interaction between neighboring dipole moment, मतलब neighboring atoms, you can say dipole moments, known as exchange coupling या फिर exchange interaction और exchange interaction or strong interaction, etc. etc. Okay, we will stick to the word exchange coupling. बहुत सारे वर्ड्स है इसके लिए, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सचेंज कपलिंग या एक्सचेंज इंटरेक्शन ही बोला है। अब इससे क्या होता है, देखो प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे दो नेबरिंग डाइपोल मोमेंट्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो अगर एक डाइपोल मोमेंट इफ इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन तो दूसरा भी उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो रिमेंबर, ड्यू टू दिस strong interaction, due to this strong interaction, small regions are formed. Small regions are formed inside a material, in which all the dipole moments are oriented in a given direction, मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा, are oriented in a given direction। तो ये स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज कपलिंग की वजह से मटेरियल के अंदर ही छोटे छोटे रीजन बन गए। हर एक रीजन में जितने भी डाइपोल मोमेंट्स है उन सबका डायरेक्शन क्या है? सेम है। और ये जो छोटे छोटे रीजन बने ना उसको बोलते हो डोमेन। These regions are known as domains। These regions are known as domain। और सबका जो इस डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स है, जितने भी डाइपोल मोमेंट है, उन सबका ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में है। तो ये जो कॉमन डायरेक्शन है इसको बोलते हैं डोमेन एक्सिस। क्या बोलते हैं? डोमेन एक्सिस। द कॉमन direction of alignment of all the dipoles within a domain is known as domain axis। Within a domain is known as डोमेन एक्सिस। मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, रुक जाओ जरा, पहले समझ लो थोड़ा सा, तुमको भी इमेजिनेशन बनाना चाहिए खुद का, राइट। अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कि डोमेन वॉल क्या होता है। अब ऐसा है, ये था मटेरियल, दिस इज दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में
what you have is, in this ferromagnetic material, you have dipoles or neighboring dipoles are strongly coupled to each other because of exchange coupling. So in a given region, you will see all the dipoles are pointing in the same direction. Mhm. All the dipoles in a given region, in a given domain, are pointing in the same direction. Hmm? Remember, this is how it is. So something like that. ऐसा है, राइट? अब ये जो छोटे छोटे रीजन बन गए, इसमें जितने भी डाइपोल्स है, दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दे आर पॉइंटिंग अलोंग अ कॉमन डायरेक्शन. ये जो कॉमन डायरेक्शन है, इस कॉमन डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? डोमेन एक्सिस. इस कॉल्ड एज डोमेन एक्सिस. तो आपको जो नोट्स में डायग्राम दिए है ना, उसमें सिर्फ डोमेन एक्सिस ड्रॉ करके दिया हुआ है, डोमेन एक्सिस. तो आपके पास जो नोट्स है, उसमें ये सारे एक डोमेन के अंदर सारे डायपोल दिखाए नहीं, सिर्फ डोमेन एक्सिस दिखा दिया, करेक्ट? एंड इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट all these domain axes are randomly oriented. So in unmagnetized state, by the way, थोड़ा सा पहले मैं डोमेन का साइज बता देता हूँ. तो ये जो डोमेन साइज होता है ना, the size of the domain is a fraction of millimeter, मतलब is from 10 raised to -4 to 10 raised to -5 या -6 मीटर होता है, इस रेंज में होता है. और हर एक डोमेन में लगभग 10 raised to 10 से 10 raised to 17 एटम्स होते हैं. तो each domain contains 10 raised to 7 to 10 raised to 10 raised to 10 to 10 raised to 17 atoms. 10 raised to 10 to 10 raised to 17 atoms, मतलब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट्स. अगर हर एक एटम का एक डायपोल मोमेंट भी गिन लो, वैसे ही होता है वो, तो फिर 10 raised to 10 to 10 raised to 17 होता है, राइट? इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट all the domain axes are randomly oriented. So in unmagnetized state, all the domain axes are randomly oriented, and hence net moment is zero. Net dipole moment is zero. एंड ऑल्सो ये जो दो डोमेन को सेपरेट करने वाला बाउंड्री है, अभी तो बाउंड्री ड्रॉ किया नहीं, अभी कर रहा हूँ, ये बाउंड्रीज है. ये जो बाउंड्रीज है, दिस बाउंड्रीज सेपरेट टू डोमेन्स, दीज आर कॉल्ड एज डोमेन वॉल. क्या बोलते हैं इसको? डोमेन वॉल. सो द बाउंड्रीज विच सेपरेट टू डोमेन्स आर नोन एज डोमेन वॉल. बाय द वे, ये इमेजिनरी है, ये ऐसा कोई वॉल होता है नहीं, इट इज जस्ट इमेजिनरी. गुड, right? I will not write it down, that those are everything is given in the notes. So remember, these are domain boundaries. The walls which separate two domains are known as domain boundaries. Good. ये unmagnetized state है. अब होता ये है, when you keep this in a magnetic field, अब जैसे जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो आप सबसे पहले इसको रखने वाले हो एक्सटर्नल फील्ड में, और फिर तुम एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करने वाले हो. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कीपिंग दिस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट अस टेक सम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बी एक्सटर्नल है, बराबर. गुड. अब होता क्या है, एज आई टोल्ड यू, पैरामैग्नेटिक में भी ऐसा ही था कि जब तुमने एक्सटर्नल फील्ड रखा, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद सम ऑफ द डायपोल मोमेंट्स दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद द एक्सटर्नल फील्ड एंड दे अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अरे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में यही हुआ था. तुम जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो, पहले वीक फील्ड था, वीक फील्ड में ओनली फ्यू वेर अलाइन,
स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अलाइन। यहाँ पे समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन। जैसे बात था, मैं आपको तुम्हारा एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे तुमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो sum of the dipoles, remember, sum of the dipoles start interacting with the external field and they start aligning themselves with the external field। लेकिन हर एक डाइपोल का अपने नेबरिंग के साथ एक एक्सचेंज कपलिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो अगर एक डाइपोल रोटेट होगा तो वो बाकियों को भी रोटेट करेगा, एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं तो इसका रियल लाइफ में यूज करता हूँ फॉर माई ऑफ कोर्स माई प्रोफेशन। अरे अभी तुम पूरा एक ग्रुप बना के क्लासेस लगाते हो, एक ने छोड़ा तो वो भी जाते हैं दोस्तों को लेके, अरे चल तिकड़े। एंड आई डू इट इंटेंशनली। मैं हर साल ना एक दो बच्चे ढूंढ के रखता हूँ कि इनको निकालना है, क्योंकि मुझे पता है वो इन्फ्लुएंसर है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन देयर ग्रुप। मुझे पूरे ग्रुप को भगाना है ना, तो मैं एक को भगाता हूँ। स्ट्रॉन्ग कपलिंग, गुड। मेरा काम कम होता है नो, तो एक भी घूमा तो बाकी भी घूमेंगे, गुड। ऑफ कोर्स साइंस के लोग हम अलग से सोचते हैं, वी डोंट रियली केयर अबाउट हाउ मच मनी इज इन आवर बैंक, वी जस्ट लुक आज का खाना मिल जाएगा, साइंस हो जाएगा, डन, वी डोंट केयर। मतलब दिस इज ऑल फेक। ये मनी मनी ये सब चीज़ें ना कुछ काम में नहीं आती बाद में। यू ऑल्सो लर्न, फोकस ऑन योर वर्क। इधर भी वही होगा। अच्छा, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, इधर भी एक घुमा तो सब घूमेंगे और सबका डोमेन एक्सेस भी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन होते जा रहा है। बट रिमेंबर, वाइल ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग, जब ये सब हो रहा है तो ये रोटेशन जो हो रहा है ना, ये डोमेन बाउंड्रीज को भी पुश करता है, और डोमेन बाउंड्रीज जो है वो ब्रेक होने लग जाते हैं, राइट। तो while these are all rotating in the direction of external field, they are pushing the boundaries, and because they are pushing the boundaries मतलब domain walls they start breaking। और एक बार domain walls break हो गए, it has a Gajini effect now। you know what is Gajini effect? याद ही नहीं रहता, तो अब तुम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर भी दोगे, कर दिया है, डोमेन एक्सिस को याद ही नहीं है कि वो पहले कहाँ देख रहा था, तो दे रिमेन अलाइंड इन द वॉट एवर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वॉज। तो दैट इज व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज कपलिंग की वजह से छोटे छोटे डोमेन बन गए, और हर एक डोमेन में जितने भी डायपोल मोमेंट है दे आर अलाइंड इन अ गिवन डायरेक्शन नोन एज डोमेन एक्सिस। द बाउंड्रीज which separate the domains is known as domain wall। When you keep such a material in a magnetic field and you start increasing the strength of magnetic field, क्योंकि पहले वीक फील्ड था, वीक फील्ड में हो सकता है कि एक ही डोमेन के डायपोल्स दे रोटेट एंड अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, बट व्हेन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, ये सारे के सारे डोमेन्स के जितने भी डायपोल मोमेंट है दे स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एंड व्हाइल डूइंग सो, जब ऐसा हो रहा था, याद रखना, जब ऐसा हो रहा था तो रोटेशन की वजह से जो डोमेन बाउंड्रीज है दे वर बीइंग पुश्ड अगेंस्ट ईच अदर, और उस पुश करने में ये डोमेन बाउंड्रीज टूट गए, दे ब्रेक। एंड व्हेन यू रिमूव द एक्सटर्नल फील्ड, नाउ द डायपोल मोमेंट्स दे डू नॉट नो कि इनिशियली हाउ दे वर अलाइंड, सो दे रिमेन एज इट इज। तो तुम एक्सटर्नल फील्ड रिमूव भी कर दोगे तो द सब्सटेंस इज स्टिल इन मैग्नेटाइज्ड स्टेट एंड हेंस इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। अब क्वेश्चन ये आता है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, मैंने थोड़ा टाइम पहले बोला, एग्जांपल में लिखा भी, ये आयरन निकेल, तो मतलब मुझे किसी भी सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उसको पहले किस रखना पड़ेगा, एक्सटर्नल फील्ड। तो तुम आयन ले आते हो और उसको फील्ड में रखते हो, बाद में वो मैग्नेटाइज होता है क्या? नहीं ना, वो तो हम नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में डालते हैं। व्हाई? भाई सिखाया है, मैंने ही सिखाया है। किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कीप इट इन
एक्सटर्नल फील्ड। तो आयन को भी पहले तुमको किसमें रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, पर हम रखते हैं क्या, नहीं, बट इट इज स्टिल परमानेंट मैग्नेट। वाई, वाई? नो, because the planet on which you live, Earth itself is like a big bar magnet। वो तो हम और आयन पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड में हैं हम लोग। यू नो, अर्थ कैन बी अज्यूम टू बी अ बार मैग्नेट। तो आयन विच यू डिग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ, मतलब फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, वो तो पहले से ही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में है। तो पहले से ये सब हो गया। तो नाउ यू हैव अ नेचुरली, मतलब नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेटिक मटेरियल। अगर यही आयन किसी स्पेस में होता, कहीं और ऐसे प्लैनेट पे होता जहाँ पे उस प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर ऑफकोर्स वो तुमको मैग्नेटाइज स्टेट में मिलता ही नहीं, तुमको मैग्नेटाइज करना पड़ता। एंड रिमेंबर, अर्थ इज अ मैग्नेट, इट इज़ गुड फॉर अस। नहीं तो ना तुम होते ना मैं होता, ना ये एटमॉस्फेयर होता, क्योंकि सन, एवरी स्टार कीप्स ऑन थ्रोइंग हॉट मटेरियल इन साइकिल्स। मटेरियल फेंकता ही रहता है सन, और बहुत बार वो अर्थ के डायरेक्शन में भी आ जाता है, और वो चार्ज पार्टिकल है, लकीली फॉर अस। और यू नो, हमने लास्ट चैप्टर में ही सीखा, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के पाथ को क्या करता है, कर्वेचर दे देता है। तो अर्थ के पास आया था, लेकिन अर्थ के फील्ड ने उसको कर्वेचर दे के बाईपास करवा दिया। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो एटमॉस्फेयर हमारा बचता ही नहीं, लॉन्ग गॉन। इसलिए तो बोलते हैं एनवायरनमेंट को बचाओ, मतलब यू आर सेइंग एटमॉस्फेयर को बचाओ इन शॉर्ट। गुड, 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 गुड। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फेरोमैटिक सब्सटेंसेस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर effect of temperature on ferromagnetic substances। Ferromagnetic materials is the same thing। It's a good topic, short topic। ऐसा है, once you have a ferromagnetic substance in magnetized state, right? अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना चालू करें तो क्या होगा? रिमेंबर, यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग कपलिंग है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कपलिंग, स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज कपलिंग, और ये मैग्नेटाइज स्टेट में है, फेरोमैग्नेटिक है, राइट, करेक्ट, गुड, गुड, ऐसा है। लेकिन जब मैं टेम्परेचर बढ़ाना चालू करता हूँ तो दे स्टार्ट ओरिएंटिंग देमसेल्फ रैंडमली, और बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, रिमेंबर टेम्परेचर के साथ डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, थर्मल एनर्जी मिल जाता है ना, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। इट्स द सेम थिंग अगेन। भले तुम्हें मेरे एग्जांपल बहुत पुअर लगे, ऐसा ही होता है, तुमको ज़्यादा पैसा मिल गया तो तुम भी उड़ते हो, यू गो एंड स्पेंड इट समवेयर। तो अगेन, इफ यू गिव इट some amount of heat, so with increase in temperature they start orienting themselves randomly, they do not remain focused aligned। तो जब इनका रैंडम ओरिएंटेशन हो रहा है तो कपलिंग भी टूट रहा है, अब एक्सचेंज कपलिंग भी टूट रहा है। तो एक्सचेंज कपलिंग इज ब्रेकिंग अपार्ट एट अ सर्टन पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट? वहाँ पे कपलिंग हो जाता है वीक, मतलब ऑलमोस्ट टूट जाता है, और जो ये पहले अलाइंड थे परफेक्टली, दे बिकम रैंडमली अलाइंड। तो रिमेंबर, द मटेरियल इन विच देर इज नो एक्सचेंज कपलिंग एंड इफ द डायपोल्स आर रैंडमली अलाइंड वाज विच टाइप ऑफ सब्सटेंस? पैरामैग्नेटिक। सो नाउ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, एक्सचेंज कपलिंग वीक होगा, और एक्सचेंज कपलिंग वीक होने के साथ साथ ये सारे डायपोल रैंडमली अलाइन हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दे विल बिकम पैरामैग्नेटिक। व्हाट वाज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? ससेप्टिबिलिटी और फेरोमैग्नेटिक, हाँ, लार्ज एंड पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे काय प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे मैं टी प्लॉट करता हूँ। तो मैग्नेटाइजेशन भी प्लॉट कर सकते हो, बट आई विल डू दिस।
तो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ आई गेट समथिंग लाइक दैट। तो रिमेंबर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो अलाइनमेंट है वो रैंडम बनते जा रहा है, और बिकॉज ऑफ द रैंडम अलाइनमेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको तुम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंप्लीटली बिकम्स पैरामैग्नेटिक, मतलब इस लाइन के राइट साइड में द सब्सटेंस इज बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक और इसके लेफ्ट में बिहेव्स लाइक फेरोमैग्नेटिक। ऐसा ग्राफ भी दिया होगा, कहीं तो दिया होगा, सामने दिया हुआ है। पक्का पक्का। तो ससेप्टिबिलिटी प्लॉट कर रहे हो, और रिमेंबर एज आई आस्क्ड यू, फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? पॉजिटिव बट लार्ज, और पैरा का पॉजिटिव बट स्मॉल। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम होगी, इसलिए ग्राफ किसका प्लॉट किया? ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंप्लीटली गेट्स कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक्सचेंज कपलिंग खत्म हो गया। नाउ ऑल ऑफ देम आर देयर ओन डिसीजन मेकर्स, कोई कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, all the dipole moments are randomly oriented, they decide their own destiny, hence it behaves like a paramagnetic substance। अब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उस केस में सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, इट इज सिंपल, काय susceptibility chi is Curie constant upon T minus Tc, where T is some temperature और Tc क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। बस दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। और T इज ग्रेटर देन Tc बोला है, क्यों बोला है T इज ग्रेटर देन Tc? क्यों बोला है? अगर T लेस देन Tc हो गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी मतलब कौन सा सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक। तुम डायमैग्नेटिक की बात कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, इसलिए T शुड बी ग्रेटर देन Tc। So that's it for today.